Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. Today we are come with another question. Look at the question. Describe the mechanism and the characteristics of the tropical cyclone which prevails in India. So before we are going to solve the question, firstly, my first step is breaking down the question. Firstly, we find out the tail word of the question. Then we will find out the primary keyword of the question, and then we will find out secondary keyword of the question if the question have describe. Describe is a tail word. What is the means of describe? Describe का क्या मतलब होता है? Describe का मतलब होता है just simply elaborate all the things. जो कुछ भी है इसके बारे में क्वेश्चन की डिमांड उसको लिख दिया जाए. The mechanism. So there is a first or the primary keyword is mechanism and the characteristics of the tropical cyclone. Second keyword क्या है? Characteristics of the tropical cyclone which prevails in India बताना है. Describe करना है साइक्लोन के सिस्टम को, उसके मैकेनिज्म को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इन इंडिया. ठीक, तो पहले कैसे इसका इंट्रो लिखेंगे. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए मैकेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो पहले लिखना है कि साइक्लोन इज अ meteorological phenomena which occurs on the sea surface where the temperature is above the 27 degrees Celsius in all the conditions. किसी भी कंडीशन में वहां पर टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए. अब क्या कह रहा है भाई कि देखो हमने एक इंट्रो पहले से भी लिख रखा है. Tropical cyclones are the intense low pressure system that develop over the warm ocean water characterized by strong winds, heavy rainfall and storm surge. In India, these cyclones predominantly form over the Bay of Bengal and the Arabian Sea, significantly impacting the coastal states. You can also add here the cyclones are something which have the cyclic flow. Cyclone is something which have cyclic flow around pre-existing low pressure system. तो क्या कहना है कि cyclic flow of wind around the pre-existing low pressure system is called cyclone. तो जरा यहाँ पे देखो भाई कैसे बनाओगे इसके लिए. तो this is called pre-existing low pressure, and we all are know that the outer periphery have more pressure than this center, and this is the isobar line. We all are know that isobar lines are the lines which have connecting the equal pressure lines. तो ये सब isobar lines हैं. This is called high pressure, this is called high pressure, this is called high pressure. So when the winds come from high pressure to the low pressure center, because of Coriolis force, the winds are deflecting rightward in the northern hemisphere and leftward in the southern hemisphere. तो ध्यान समझो भाई, rightward deflect हो रहा है. ठीक, तो ये देखो एक साइक्लिक फ्लो बन गया यहाँ पे कि कैसे विंड का साइक्लिक फ्लो बन रहा है. दिस इज लो प्रेशर जोन. व्हेन द विंड्स आर मूविंग from high pressure zone, because of the presence of Coriolis force, they are deviating rightward in the northern hemisphere from their direction and leftward in the southern hemisphere from their direction. So it is kind of cyclic flow of cyclones are the cyclic flow of wind around the low pressure pre-existing low pressure zone. तो ये आपको एक इंट्रो लिखना था. अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो पहले मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे. मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है भाई. मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन. तो पहले लिखा है कि वार्म ओशन वाटर होना चाहिए. तो कह रहा है किस किस चीज की वजह से साइक्लोन पैदा हो रहा है, साइक्लोन का ओरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, इसके बारे में बताओ कि ओरिजिन कैसे हो रहा है. तो कह रहा है पहला कंडीशन क्या है साइक्लोन के ओरिजिन के लिए, वार्म ओशन वाटर होना चाहिए विच इज temperature is above the 27 degree Celsius. Second,
if there is a presence of warm and large oceanic water body, then there is also the source of a high humidity. High humidity, it means there is the source of high evaporation, because we all are know that कि the main source of energy of cyclone is the energy which is released during the condensation, the latent heat which is released during the condensation. तो कंडेंसेशन से जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसी के लिए, तो यहाँ हाई ह्यूमिडिटी है। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर नहीं होगा तो साइक्लोन का जेनेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट, विंड सियर जो है, विंड सियर जो है वीक होना चाहिए, वीक विंड सियर या विंड अब्सेंस ऑफ विंड सियर होना चाहिए। कोरियोलिस इफेक्ट मतलब कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, और देर इज अ प्रेजेंस ऑफ ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहीं पर एक चीज और देखना है कि ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब इसका डिटेलिफिकेशन आपको कर देना है क्वेश्चन में। अब कह रहा है स्टेजेस ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, कुछ स्टेजेस भी लिख दिए हैं यहाँ पे कि आपको एग्जाम में सीधे बता देना है कि ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होती है, डिसिपेशन क्या होता है, सिर्फ बताना है। यहीं पर एक फिगर आप बना सकते हो साइक्लोन का। देखो हम साइक्लोन का फॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं। दिस इज द प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, दिस इज द प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, एंड व्हेन इट intensify then the evaporation take place and all the warmer water rise up upward and it develops high pressure near the troposphere above the low pressure zone, and the winds which are coming from all the directions, the winds which are coming from all the directions, जो भी विंड सब डायरेक्शन से आ रही हैं ये सब क्या है, दे आर हाई प्रेशर विंड्स। ये हाई प्रेशर विंड्स है, हाई प्रेशर विंड्स। अभी इसे क्या करेंगे, साइक्लिक फ्लो करा देंगे। तो यहां से ये देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ a strong eye wall. I hope कि this is only the discussion which cannot be elaborate more deeper. That's why you have to understand. This is eye wall, ये भी आपको मेंशन करना है। This is eye wall, this is eye of the cyclone, and here there is a divergence. When all the vaporized or evaporated water rise up and reach at the troposphere, because with the increasing altitude temperature will drop down, all the water body condense and form clouds. ये आपको यहाँ पे अपने एग्जाम में मैप में बना देना है। और जैसे ही क्लाउड होगा तो इधर रेनफॉल होगा और ये सरफेस ठंडा होता जाएगा, और ये सब लगातार साइक्लोन का मैच्योरिटी फेज आ जाएगा, और ये रेन बेयरिंग बैंड्स ऐसे ऐसे हर जगह रेन बेयरिंग बैंड्स बनते चले जाएंगे। ये आपको रेन बेयरिंग बैंड्स बनाने हैं, खूब सारे रेन बेयरिंग बैंड्स, और इन सब के ऊपर छोटे छोटे क्लाउड्स हैं। तो देखो ये आई वॉल हो गया, ये आई हो गया, ये आई वॉल हो गया, और इधर क्या है, रेन बेयरिंग बैंड्स हैं। तो ये आपको एक तरह का बनाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है भाई, इसके बाद हमारे पास क्या है, कह रहा है कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कराना है, सीजनल अकरेंस भी बताना है, मतलब अब कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमें चलना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बताने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब बताना है तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या नेचर है ये बताना है। तो पहले बताना है कि भाई ये जो है इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में है। यहीं पर आप एक छोटा सा मैप भी दे सकते हो, ठीक, और यहाँ पे दिखा सकते हो साउथ वेस्टर्न मानसून के साथ। यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो साउथ वेस्टर्न मानसून के साथ। साइक्लोन का पीरियड यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सीजनल अकरेंस क्या है, प्री मानसून पीरियड है अप्रैल टू जून, पोस्ट मानसून पीरियड है अक्टूबर टू दिसंबर। स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन वी हैव डन विद।
हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे हमें देखना है। तो पहला क्या है, साइज ऑफ द साइक्लोन। साइज ऑफ द साइक्लोन इज वेरी sometime it is 50 kilometer, and like hurricane it is more than 650 kilometer. Second क्या है, cyclones are always and only formed in oceanic surface. Third क्या है भाई, it have pre-existing low pressure. It have pre-existing low pressure. Pre-existing low pressure चाहिए. These are the characters. ये कुछ कैरेक्टर्स थे। और इसके साथ साथ आपको एक और मैप यहाँ आप ऐड कर सकते हो कि भाई इंडिया में साइक्लोन्स जो हैं उसका मोस्ट पीरियड क्या है। पहला कंडीशन है बिकॉज ऑफ यहाँ पे बताना कि ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड में क्या होता है भाई, डिफरेंशियल हीटिंग रहती है। प्री मानसून पीरियड डिफरेंशियल हीटिंग है, तो ये जल्दी मतलब प्री मानसून पीरियड मतलब जून, अब सॉरी अब मार्च एंड अप्रैल में प्री मानसून पीरियड में भी यहाँ पे आ रहा है साइक्लोन। प्री मानसून पीरियड, ये भी एग्जाम में बना सकते हो, और इधर भी प्री मानसून पीरियड है, ठीक। और एक दूसरा साइक्लोन कब आ रहा है, पोस्ट मानसून पीरियड में। तो ये सब मेंशन करना है, और इसके साथ साथ इसके कंक्लूजन में लिखना है कि साइक्लोन्स आर मोस्ट डिवास्टेटिंग phenomena which occurs in a frequent gap of period in the Indian Ocean, which damage the coastal life, which damage the economic potential of India, which destruct the, you can say that the economic growth of India, because frequently when the cyclone hits in the coastal area, it will damage not only the coastal topography, it will damage the economic activities, it will hamper the social and cultural activities, it will hamper the coastal employment. ये सब लिख करके आपको इस क्वेश्चन को एंड अप करना है। वी आर कम विद द अनदर क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेटस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, इज इट sufficient to meet the domestic demand, and what are the possible alternative energy sources for India? Provide a critical account. Look at the question. Before we are going to start the question, firstly our first step is taken to break down the question. तो कैसे break down करना है, find out the tail word in the question, because tail word give us the road map कि किस तरफ question जा रहे हैं, and what kind of nature and what kind of, you can say that the structuring of the answer, what kind of approach of the question is, तो किस तरह का अप्रोच हो। तो टेल वर्ड में क्या है भाई, सबसे पहले हमें देखना है कि क्रिटिकल अकाउंट का मतलब होता है कि भाई क्रिटिकल अकाउंट मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना है ना, हर चीज में पॉजिटिविटी ही नहीं ढूंढनी है, देयर आर सम काइंड ऑफ लिमिटेशन एज वेल। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, आवर फर्स्ट और प्राइमरी कीवर्ड इज द, tell us in during your answers status of solar energy in India। पहले तो बताना है कि सोलर एनर्जी स्टेटस क्या है इंडिया का। सेकंड क्या है, इज इट सफिशिएंट टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड, क्या सोलर एनर्जी सफिशिएंट है टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड, बिकॉज वी हैव द लार्जर पॉपुलेशन, we are the largest population in the world, so we have a great demand and great consumption in the energy electricity। और आप देख रहे हो डे बाय डे द डिमांड एंड द कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजिंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल वे टू अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज
फॉर इंडिया। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या बताया, पहले तो स्टेटस बताना है। सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, सेकेंडरी, व्हाट इज सेकेंडरी कीवर्ड, इज इट सफिशिएंट टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड, एंड टर्सरी कीवर्ड of the question is what are the possible alternative energy sources for India. Okay, now we are here, write down the status of solar energy and alternative energy sources, अ क्रिटिकल एनालिसिस। पहले देखना है कि एनर्जी सोर्सेस, जो सोलर एनर्जी का स्टेटस है इंडिया में क्या है। तो यहां लिखा है ग्रोथ एंड करंट कैपेसिटी एज 2024 इंडियाज टोटल सोलर पावर कैपेसिटी एक्सीड टू 73 गीगाबाइट। गवर्नमेंट एम्स टू अचीव 280 गीगाबाइट ऑफ सोलर एनर्जी बाई 2030। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि भाई गवर्नमेंट एम्स टू अचीव 280 गीगाबाइट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030 एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू रीच 500 गीगाबाइट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी। तो देखो यहां हमने दो बातें मेंशन कर दी, चूंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल डेटाबेस है। नेक्स्ट में क्या है, इन इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट सोलर टैरिफ ग्लोबली, बिकॉज वी ऑल आर नो दैट कि सोलर का डिमांड बढ़ता जा रहा है, और अगर हम टैरिफ ज़्यादा लगाएंगे तो सोलर जो प्लेट्स हैं उसके इंपोर्ट पर, सॉरी उसके एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो, सोलर इनिशिएटिव। भाई आखिर में ये डिमांड हम बढ़ाएंगे कैसे, तो सोलर इनिशिएटिव इन 2010 वी लॉन्च नेशनल सोलर मिशन एम्स टू मेक India hub for the solar manufacturing. We all are know that कि India and France are launching the solar mission. Solar parks and rooftop solar schemes, PLI scheme for the solar modules. तो ये सब हैं जिससे कि हम भाई इसका सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं। चैलेंजेस इन द सोलर एनर्जी एडॉप्टेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस। फर्स्ट चैलेंज क्या है, इंटरमिटेंसी एंड द स्टोरेज इशू। सबसे बड़ा इशू क्या है, स्टोरेज। भाई कंजम्पशन तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, पर सोलर जो बैटरी होती है, सोलर एनर्जी जो है उसको ज्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, सोलर के लिए हमें क्या चाहिए, एक लैंड एक्विजिशन भी चाहिए, बहुत बड़ा लैंड चाहिए जहां पर हम बड़ा सा सोलर एक तरीके से प्लांट लगा पाए। तो लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट क्या है, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। वी आर मोस्टली डिपेंडेंट और इन डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर द गैजेट्स ऑफ द सोलर टूल्स। तो सोलर टूल्स के लिए जो प्लेट्स चाहिए, फोटोवोल्टाइक सेल चाहिए, उन सब के लिए हम किस पर डिपेंडेंट हैं, चाइना पे। ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंजेस हैं, हमारे पास कोई एक कॉम्पिटिटिव ग्रिड इंटीग्रेशन नहीं है जहां पर कि हम इस तरह की सारी पॉलिसीज को और सारे सोलर सिस्टम के ग्रिडिंग सिस्टम को कनेक्ट कर पाए। दीज आर द चैलेंजेस। चूंकि दिस क्वेश्चन इज इन अ शॉर्ट आंसर, सो वी कैन नॉट बी इलोबरेट मोर। नेक्स्ट, इज दी सोलर एनर्जी सफिशिएंट टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। so to be very honest, solar energy is not sufficient to, you can say that, fulfill our day-to-day's daily demand, because there are some reasons. While solar energy plays a crucial role in India's energy mix, it is not sufficient to meet domestic demand alone due to the following reasons. यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहला क्या है, total electricity demand is 2500 TWh by 2030 टेराबाइट। बेस लोड इशू क्या है भाई, कि जो सोलर एनर्जी है वो ज्यादा लोड बैलेंस नहीं कर पाता, ज्यादा लोड को सह नहीं पाता। सीजनल वेरिएशन, वी ऑल आर नो दैट कि ड्यूरिंग द समर्स द सोलर स्टोरेज एंड सोलर
potential is more and during the winters solar potential is less। पर हमको तो एनर्जी चाहिए, एक सर्टेन सेट ऑफ द डिमांड तो हमारी है ही। अब क्या कह रहा है, स्टोरेज कॉस्ट, हमारे पास स्टोरेज नहीं है और स्टोरेज कॉस्ट जो है वो बहुत हाइयर है। तो अगर स्टोरेज कॉस्ट हाइयर होगा तो वी कैन नॉट प्रोवाइड सोलर लाइक एनर्जी इन अ वेरी चीप रेट। और नेक्स्ट क्या है, सीजनल वेरिएशन और ये स्टोरेज कॉस्ट। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कह रहा है कि पॉसिबल अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया। व्हाट आर द पॉसिबल एनर्जी सोर्सेज in India? We all know that कि solar energy is not independently or alone is sufficient to fulfill all the demands, because we are the largest population and we cannot forget the status of our developing economy, because developing economy is needing more electricity supply to enhance the economic potential at their optimum capacity, so that we need all type of electricity supply in a single time period। single time period में हमें all type of electricity supply चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे इंडिया का कंजम्पशन ही नहीं बढ़ रहा, इंडिया की इकोनॉमी ही एक्सपेंड नहीं कर रही, इंडिया में फैसिलिटी भी एक्सपेंड कर रही है। तो अगर फैसिलिटी एक्सपेंड कर रही है तो एवरी पर्सन हैव देयर सर्टेन सेट ऑफ सोलर एनर्जी डिमांड। तो एनर्जी का डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, तो उसको केवल सोलर से पूरा नहीं किया जा सकता। देयर आर, वी फाइंड आउट सो मेनी सोर्सेज, वी आर सर्चिंग सो मेनी सोर्सेज एंड द अल्टरनेटिव सोर्सेज कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो पहला क्या है, विंड एनर्जी है। तो देखो यहां मैंने लिख दिया है 46 गीगाबाइट 2024 में इसका पोटेंशियल है और 140 गीगाबाइट बाई 2030 इसका एम है। हाइड्रो पावर 47 गीगाबाइट विथ पोटेंशियल फॉर 100 प्लस गीगाबाइट का पोटेंशियल इनके पास है। ग्रीन हाइड्रोजन एक नया सोर्स है। बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी 10 गीगाबाइट। न्यूक्लियर एनर्जी 7 गीगाबाइट और बाई 2031 क्या करना है 22 गीगाबाइट। एक यहां पर हम लिख सकते हैं टाइडल एनर्जी इज ऑल्सो द सोर्स। टाइडल एनर्जी और जिसको ओटेक बोल रहे हैं, ओटेक एनर्जी भी एक सोर्स है। जियोथर्मल एनर्जी इज ऑल्सो द सोर्स। जियोथर्मल एनर्जी तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चलेंगे तो क्या कह रहा है, क्रिटिकली एनालिसिस एंड वे फॉरवर्ड में कुछ बताओ। तो इसमें हमने एक कंक्लूजन में क्या देना है, डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स नीडेड, एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, पॉलिसी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसिडरेशन। ये सारे पॉइंट्स आपको डालने हैं इस क्वेश्चन में। वी आर कम विद अनदर क्वेश्चन, डिस्कस द स्टेटस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री। तो क्या कह रहा है भाई, फर्स्टली वी फाइंड आउट what kind of approach in the question। तो पहले करना है ब्रेक डाउन दी क्वेश्चन। पहले कर दिया ब्रेक डाउन दी क्वेश्चन। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना व्हाट इज टेल वर्ड। तो टेल वर्ड क्या है, डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या होता है भाई, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। देन वी फाइंड आउट द प्राइमरी की वर्ड। प्राइमरी की वर्ड क्या है, स्टेटस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। स्टेटस बताना है टूरिज्म इंडस्ट्री का इन इंडिया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, एनालाइज। देखो एनालाइज, तो अनदर कीवर्ड क्या है, एनालाइज करना है। एनालाइज दी इट्स फ्यूचर इन द कंट्री। तो इट्स फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इन द कंट्री। तो देखो क्वेश्चन को डिकोड कर दिया, ब्रेक कर दिया। डिस्कस द स्टेटस ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म पोटेंशियल बताना है कि इंडिया का कितना है और इसके साथ साथ इसका ग्रोथ। तो देखो क्या है भाई, पहले तो ये समझो कि टूरिज्म का मतलब क्या होता है। टूरिज्म का मतलब होता है व्हेन द पीपल्स आर मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन विदाउट एनी पुशिंग फैक्टर, दे वांटिंग टू ट्रैवल। तो टूरिज्म वर्ड जो है ये एक
कई सारे इसके मीनिंग हैं, पर एक मीनिंग इसका ये है कि ट्रैवलिंग के पर्पज से, फॉर द पर्पज ऑफ हैप्पीनेस, when the peoples are moving for the purpose of happiness, to look out something, कुछ देखने के लिए, to look out something for the happiness, it is called tourism. पर now at present tourism word is a very dynamic word. तो देखो भाई, इसमें हमने एक इंट्रो लिखा है कि tourism is a vital sector of India's economy, contributing significantly to GDP, employment and foreign exchange earning India. With its diverse geography, rich cultural heritage and historical landmarks, has become a major global tourist destination. इंडिया कैसे जो है ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, इसके बारे में बात की। तो देखो, इंट्रो में पोटेंशियल की भी बात की, इंट्रो में ये उसके स्टेटस की बात की कि व्हाई इंडिया इज सो अट्रैक्टिव, बिकॉज इंडिया हैव ऑल टाइप ऑफ टूरिज्म, ऑल टाइप ऑफ टूरिज्म। अभी थोड़ी देर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हेन वी मूव फर्दर। According to the some data I have to inculcate in answer, according to the Economic Survey of India 2024-2025, the contribution of tourism in GDP is 5%, which is after COVID. After COVID it is equivalent to the before COVID. COVID के पहले के आसपास पहुंच गया। 7.6 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 28 बिलियन US$ फॉरेन इनकम आई है। एम्स क्या है, बाई 2030 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, सॉरी 10 करोड़ टूरिज्म अट्रैक्ट करना है और 2 करोड़ पीपल ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट ये करना है हमें। नेक्स्ट क्या है भाई, टाइप्स ऑफ टूरिज्म। ये तो एक हमने स्टेटस बता दिया, अब टाइप्स ऑफ टूरिज्म क्या क्या है, कौन कौन से एरियाज है जहां पे टूरिज्म हो सकता है। तो देयर आर infinite number of types of tourism like medical tourism, eco tourism, adventure tourism, eco wildlife tourism, cultural and heritage tourism, adventure tourism, medical tourism, beach and coastal tourism, rural and tribal tourism। तो बहुत सारे टूरिज्म हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में लगातार टूरिज्म के एस्पेक्ट्स और उसके एरिया, स्कोप ऑफ एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे है कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म का मतलब क्या है भाई, बहुत सारा यूनेस्को साइट्स हैं इंडिया में, हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक। इको एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंडिया हैव सो मेनी नेशनल पार्क, सो मेनी टाइगर रिजर्व, सो मेनी एलिफेंट रिजर्व्स। एडवेंचर टूरिज्म, इंडिया हैव सो मेनी एडवेंचरस साइट्स लाइक वेस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज। Medical and wellness, it includes surrogacy as well. It includes surrogacy as well. Beach and coastal, we include Goa here, we include Andaman and Nicobar here, we include Pondicherry here. Rural and tribal tourism, like so many beautiful festivals of tribals like Losar, like Zero Valley Festival, Apatani Festival. There are so many festivals, and in India there are a lot of more types of tourism, scope of tourism. When we move further, there is a government initiative to boost the tourism. बहुत सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी है जो बूस्ट कर रहा है टूरिज्म को। जैसे पहला क्या है, जैसे देखो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चल रहा है, प्रसाद स्कीम चल रही है, देखो अपना देश इनिशिएटिव, ई वीजा फैसिलिटी है, गंगा सर्किट, बुद्ध सर्किट, ये सब आपको आंसर में डालना है। अब क्या कह रहा है, चैलेंज फेसिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस फेसिंग टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। तो पहले तो क्या है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है इंडिया में टूरिज्म का, मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल अपीयरेंस नहीं है। जैसे देखो डिजिटल अपीयरेंस में, जैसे हम लेते हैं स्विट्जरलैंड को एग्जांपल में, तो स्विट्जरलैंड का डिजिटल अपीयरेंस बहुत ज्यादा है, आईफेल टावर का डिजिटल अपीयरेंस बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का डिजिटल अपीयरेंस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड कनेक्टिविटी इशू है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
रोड कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बेटर फैसिलिटी नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न है कि जो भी फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न है, सीजनल डिपेंडेंसी है, जैसे मान लो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस, जब भाई एक तरीके से विंटर सीजन आता है, स्नोफॉल का टाइम आता है, तो उस समय क्राउडी हो जाता है। बाकी ओवर द ईयर वहां पे किसी एक सीजन में ही रशनेस देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल चैलेंजेस हैं, बहुत सारा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बहुत सारे लोग जो हैं समर में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, जबकि समर वेकेशन में टाइम तो बहुत मिलता है। आप क्या कह रहे हैं, कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे आप मालदीव के साथ देखिए, मालदीव ने कहा कि लक्षद्वीप इज कैन नॉट बी कंपेयर विथ इंडिया एंड लक्षद्वीप नेवर रीच एट दैट लेवल मालदीव है, जो मालदीव का लेवल है उस लेवल पे लक्षद्वीप का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, और भी बहुत सारे सेवरल चैलेंजेस हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ व्हीकल्स, लैक ऑफ कनेक्टिविटी में एयरपोर्ट्स नहीं है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ व्हीकल्स नहीं है, और भी जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो कि फूडिंग एंड लॉजिंग, मतलब होटल्स सब जगह अवेलेबल नहीं है ना, तो इस तरह का डायनेमिज्म भी है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, कौन कौन से फ्यूचर है टूरिज्म ऑफ इंडिया। तो पहला हमने लिखा है सबसे पहले, प्रिडिक्टेड ग्रोथ ट्रेंड बाय 2030 इंडियाज टूरिज्म सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रीच एट दी $500 billion। इमर्जिंग ट्रेंड्स, तो सस्टेनेबल टूरिज्म, डिजिटल एंड स्मार्ट टूरिज्म, क्रूज एंड लग्जरी टूरिज्म, स्पेस एंड एस्ट्रो टूरिज्म, रूरल एंड एग्रीकल्चरल टूरिज्म। इनके बारे में थोड़ा सा आप R&D करोगे तो कुछ आप डिटेल में लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्या है भाई, की स्ट्रेटजी फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। तो पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, फोकस करना है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे। बॉर्डर रोड इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन तक, जैसे सेला टनल जब बन गया तो सेला टनल भी एक टूरिज्म का पार्ट हो गया। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है टूरिज्म बढ़ेगा। प्रमोशन टू द लेसर नोन डेस्टिनेशन, प्रमोट करना है लेसर नोन डेस्टिनेशन को, लाइक जीरो वैली, लाइक यू कैन से दैट मेचुका, इस तरह की चीजों को प्रमोट करना है। अब कह रहा है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिफॉर्म, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिफॉर्म करना है। लिबरल ई वीजा की भी फैसिलिटी देनी है। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ तभी हो सकता है जब उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनिशिएट किया जाए, पुश किया जाए। तो दैट इज ऑल अबाउट योर आंसर। ये सारी चीजें आपको इनकलकेट करनी है अपने आंसर में, ओके। और लास्टली आपको यू हैव टू मेंशन that ki tourism India have the largest potential of tourism and there are several types of tourism in India, and there are you can say that the high scope of tourism in India because India have all type of tourism. Okay, look at the question, divide India into major climatic regions and describe the region in which the land of Bihar state is included. Okay, तो जैसे क्वेश्चन हम लोग सामने देख रहे हैं तो पहले क्या करेंगे हम लोग, आवर फर्स्ट स्टेप इज डिकोडिंग द क्वेश्चन, डिकोड द क्वेश्चन, डिकोड करना है क्वेश्चन को। डिकोड कैसे करेंगे भाई, तो क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। वन इज फर्स्टली फाइंड आउट द टेल वर्ड ऑफ द क्वेश्चन, देन प्राइमरी कीवर्ड and then secondary keyword. Look at the question, divide India into major climatic region. This is our first keyword, divide the India into major climatic region and describe, this is the tail word. तो our tail word is describe. describe का मतलब क्या होता है भाई, just simplification of the things. डिस्क्राइब का मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द थिंग्स।
डिस्क्राइब करना है। द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड, इसका मतलब है सेकेंडरी कीवर्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार इज included. Okay, from this question what kind of intro is and what kind of intro will be? तो intro कैसा होना चाहिए? Your intro should be, because it is a short question, so your intro should be within the word limit between 20 to 30 words. Your intro should be like in the year 1989, with the help of, with the collaboration of Planning Commission and Remote Sensing Agency, on the basis of temperature, rainfall and the nature of soil. On the basis of temperature, rainfall and the nature of soil, India's climatic region divided into 15 agroclimatic zones. तो यहां पर आपको सबसे पहले बताना है कि प्लानिंग कमीशन और जो रिमोट सेंसिंग 1989 में जो रिमोट सेंसिंग एजेंसी थी उसने इंडिया को 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया। तो इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड, यू हैव टू मेक another map of India and showing the agroclimatic zones. आपको क्या करना है, सीधे एक मैप आपको हैव टू बिल्ड अ मैप। ये आपने एक मैप बनाना है और यहाँ पे 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स दिखाने हैं। तो सपोज दैट दिस इज द वेस्टर्न हिमालयस, दिस इज द ईस्टर्न हिमालयस, तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो 4 and 5 climatic zones are 4 and 5 agroclimatic zone lies in Bihar. There are so many, you can say that, like the western coastal plain, the eastern coastal plain, the western coastal plain, the dry land of Rajasthan, and this is the Gujarat, this is the southern agroclimatic zone, this is the central part, this is the eastern part. There are 15 agroclimatic zones, and here is a Andaman and Nicobar. This is island type of agroclimatic zones. Okay, Bihar lies in 3 and 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको बिहार का एग्रोक्लाइमेटिक जोन को डिस्कस करना है, 3 and 4 को। तो जस्ट सिंपली पुट इट अबाउट दी 3, which is known as lower Gangetic zone, and this is the mid Gangetic, या central, you can call it central Gangetic zone. What is the characteristics? Here you have to put it down the temperature. The temperature during the summer is fluctuating between 25 to 40 degrees Celsius, and rainfall is 125 to 200 centimeter.
during the summer, during the winter, the temperature fluctuates 18 degrees Celsius to 10 to 18 degrees Celsius, and sometime it will cross 25 degrees Celsius as well. And overall rainfall is 125 to 200 centimeters. Somewhere in some geographer says that 150 centimeter to 200 centimeter. It is the prone area for rice cultivation. It is prone and favorable condition for rice cultivation, jute, millets in the dry season, millets, fishing in the ponds, and in this region the temperature of summer season is between 25 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. The rainfall is up to 125 to 150 centimeter. During the Kharif crops, it is also favorable for rice, makhana, jute, etc. In the Rabi crop, here the wheat is prominent. You have to put it down this in a very short and detailed manner. और इसके साथ साथ आप देखो इस क्वेश्चन का डिमांड हमारा पूरा हो गया. क्या बता रहा था कि डिवाइड इंडिया इनटू द मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स. तो पहले हमने क्या किया, बताया कि इंडिया कैसे मेजर क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड हुआ. फिर हमने देखा कि द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड. तो बिहार स्टेट किस रीजन में इंक्लूड है ये भी हमने इसमें बता दिया. 3 and 4 यहाँ हमने बता दिया कि समर टाइम में क्या क्या हो रहा है, विंटर टाइम में रवि की क्रॉपिंग में क्या क्या हो रहा है. और इस एरिया का कुछ प्रॉब्लम बताना हो तो ये भी बता सकते हो कि इन 3 and 4 देयर इज सो मेनी मार्सी लैंड और द सो मेनी ऑक्सबो लेक, ये सब भी थोड़ा बहुत आप बता सकते हो. So it is all about this question. We are come with the new question. Bihar produce approximately 90% of India's makhana, yet it lags behind the state like Punjab and Assam in export. Analyze the key factors contributing to this paradox and discuss how the makhana brood proposed for Bihar can aim to rectify these disparities. देखो बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले सबसे मेथड एक होना चाहिए कि आप डिकोड कर पाए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, क्वेश्चन 38 मार्क्स का है. तो इसके लिए आपको कई सारे स्टेप में क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा. तो पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आई विल गो एंड डिकोड द क्वेश्चन. पहले मैं जाकर के डिकोड कर रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन. डिकोड द क्वेश्चन, decode the question. Decode the question. Have firstly we find out how many tail words inculcate in the question. कितने tail words हैं क्वेश्चन में, and how many primary keywords, how many secondary keywords involved in the question, how many tertiary keywords involved in the question. So Bihar produce approximately 90% of India's मखाना. देखो यहाँ पे आपको डेटा भी दिया है कि 90% बिहार जो है मखाना को प्रोड्यूस कर रही है. इट लैक्स बिहाइंड स्टेट लाइक पंजाब एंड आसाम इन एक्सपोर्ट. तो पहला यहाँ तक जो प्राइमरी कीवर्ड है वो ये पूछ रहा है कि जो बिहार है उसमें मखाने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, फिर भी वो लैक कर रहा है किसमें, एक्सपोर्ट में, पंजाब और आसाम जैसे स्टेट से. एनालाइज, तो फर्स्ट टेल वर्ड क्या है, एनालाइज करना है. एनालाइज दी की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पैराडॉक्स. ये देखो सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, एनालाइज करना है द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पैराडॉक्स एंड डिस्कस. तो नेक्स्ट टेल वर्ड इज डिस्कस. Discuss how the Makhana board proposed for Bihar can aim to rectify this disparity. This is our
tertiary keyword. How the Makhana board proposed for Bihar can aim to rectify this disparity. देखो भाई, अब इसको लिखने के लिए क्या है भाई, कैसे करेंगे? तो हमने एक इसका पहले हमने लिख रखा है एक आपके लिए इंट्रो. इंट्रो में क्या है भाई कि बिहार अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ इंडियाज मखाना विच इज नोन एज फॉक्सनट. इट कंसीडर एज अ ड्राई फ्रूट and production mainly from Mithilanchal region. Mithilanchal region, Darbhanga, Madhubani, Purnia, Katihar and Araria. However, it lags behind a state like Punjab and Assam in export despite its dominancy in production. This paradox is due to the multiple structural and policy related challenges. देखो यहीं पर हमें पता चल गया कि there is a multiple challenges, मल्टीपल स्ट्रक्चरल एंड पॉलिसी रिलेटेड चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से मखाना का जो 90% ऑफ डिस्पाइट ऑफ 90% ऑफ प्रोडक्शन कैन बी होल्डेड बाय द बिहार, बट बिहार इज लैगिंग बिहाइंड पंजाब एंड आसाम. तो ये क्यों है? तो पहला क्या है, लैक ऑफ प्रोसेसिंग. अब यहां पर क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाने हमें. तो सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ प्रोसेसिंग है, लैक ऑफ प्रोसेसिंग, लैक ऑफ प्रोसेसिंग है, लैक ऑफ प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर. जो इन लैक ऑफ प्रोसेसिंग तो है, उसके साथ साथ आपको वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा करना है. जैसे मोस्ट मखाना फार्मर्स इन बिहार सेल रॉ सीड्स विथ मिनिमल प्रोसेसिंग फैसिलिटी. मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई अच्छा प्रोसेसिंग हब नहीं है. तो इसका मतलब है कि जब मखाना बोर्ड बनेगा तो इसका मतलब है कि वहां पे एक मॉडर्न साइंटिफिक मैकेनाइज्ड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स लगेंगे, हब बनेगा. ये भी एक साथ इसके साथ समझ रहे हो. दूसरा क्या हो सकता है, सप्लाई चेन इन इफिशियंसी. तो सप्लाई चेन इन इफिशियंसी भी है. तो दूसरा क्या है, सप्लाई चेन इन इफिशियंसी, सप्लाई चेन इन इफिशियंसी एंड पुअर मार्केट लिंकेजेस. तो क्या हो गया इसी में, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, पुअर मार्केट लिंकेजेस. पुअर मार्केट लिंकेजेस, पहला क्या था, लैक ऑफ प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन. दूसरा क्या है, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसी एंड पुअर मार्केट लिंकेजेस. ऐसा क्यों है, क्योंकि बिहार में अभी भी ट्रेडिशनल मखाना का जो ट्रेड है वो हो रहा है अभी भी. पुअर मार्केट लिंकेजेस है, मतलब रोड रेल इन सब का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो मार्केट तक लिंक है फार्मर्स का, जो लोअर इनकम फार्मर्स है, जो उनका मार्केट तक लिंक अच्छा नहीं है. इसकी वजह से भी हमको ये देखने को मिल रहा है. और क्या है तीसरा, पुअर ब्रांडिंग. थर्ड क्या है, पुअर ब्रांडिंग. वी ऑल आर नो दैट कि भाई किसी भी चीज का सेलिंग जो है ना, उसका इंपॉर्टेंस इस पर डिपेंड करता है कि उसकी ब्रांडिंग कैसी की जा रही है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है. तो पुअर ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन इशू है, लोअर क्वालिटी ऑफ मखाना है, इसलिए सर्टिफिकेशन इशू भी है. यू हैव टू एड्रेस दिस इशू. तो ये सारी चीजें आपको करनी है. और क्या है इसमें, अब यहां पे क्या है कि भाई पहले हमने बताया कि पुअर ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग ही अच्छी नहीं है, और सर्टिफिकेशन इशू है. सर्टिफिकेशन इशू क्यों है भाई, तो सर्टिफिकेशन इशू इस वजह से है क्योंकि पुअर क्वालिटी ऑफ मखाना है. फार्मर्स को मॉडर्नाइज और मैकेनाइज्ड एडवांस एआई टूल्स के साथ या जीपीएस सिस्टम के साथ कनेक्ट करके फार्मर्स एक्सपर्टीज नहीं है, फार्मर्स के पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा जो मखाना का प्रोडक्शन हो सकता है वो कैसा हो सकता है. नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट स्टोरेज. स्टोरेज
इनएडिक्वेट स्टोरेज है। इनएडिक्वेट स्टोरेज है मतलब स्टोरेज का भी अच्छा फैसिलिटी नहीं है। पैकेजिंग फैसिलिटी, इनएडिक्वेट स्टोरेज और पैकेजिंग फैसिलिटी मतलब इतने लार्ज अमाउंट में जो मखाना का प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए स्टोरेज का एक तो फैसिलिटी नहीं है, दूसरी चीज क्या है हमने देखा कि पैकिंग फैसिलिटी भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी गैप्स। तो लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी गैप, ये भी है। लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट है, कोई गवर्नमेंट इनको सब्सिडी नहीं दे रही है। अब चूंकि ये फ्लडेड एरिया का रीजन है मिथिलांचल, तो यहाँ पर चूंकि मोस्ट ऑफ द 8 मंथ तक लोग फ्लड प्रोन एरिया से सफर करते हैं, तो यहाँ पर लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट है, गवर्नमेंट ने इसे बड़े पैमाने पर पुश नहीं किया है। पॉलिसी गैप भी है। पॉलिसी गैप का मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चरल गैप भी है, फंक्शनल गैप भी है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों गैपिंग है। इंप्लीमेंटेशन का गैप है, मार्केट लिंक नहीं है, इसके लिए कोई बड़ा मार्केट या गवर्नमेंट फोकस्ड प्रोग्राम्स नहीं है। अब कह रहा है कि ये सारी चीजें हैं, जैसे लैक ऑफ प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन इन इफिशियंसी, पुअर मार्केट लिंकेजेस, पुअर ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन इशू, इनएडिक्वेट स्टोरेज, लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी गैप। अब कह रहा है कि हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग एक बार फिर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब यहां पर हमने ये देख लिया, डिस्कस हाउ द मखाना बोर्ड प्रपोज्ड फॉर बिहार कैन एम टू रेक्टिफाई दिस डिस्पैरिटी। कह रहा है अब ये बताओ, ये कमियां तो आपने बता दी कि क्यों है। आपने देखा कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल रोड इन सब का बेटर फैसिलिटी नहीं है, नियर मार्केट नहीं है, पुअर मार्केट फैसिलिटी है, अच्छी ब्रांडिंग नहीं की गई। तो इन तरह के रीजंस के बाद भी डिस्कस हाउ द मखाना बोर्ड प्रपोज्ड फॉर बिहार कैन एम टू रेक्टिफाई दिस डिस्पैरिटी। तो अब इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहां पे बताना है कि हाउ मखाना बोर्ड help to boost the मखाना मार्केट एंड इनकम ऑफ फार्मर्स फ्रॉम दी मखाना। कैसे कर सकते हैं रोल ऑफ मखाना बोर्ड। तो पहले क्या करना है, अगर मखाना बोर्ड होगा तो सबसे अच्छी बात होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज की बेटर फैसिलिटी होगी। तो पहला क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और एक तरीके से प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। देखो वही चीज आ गई ना कि जो हमने देखा था कि मखाना बोर्ड नहीं होने पर क्या था। तो पहले हम एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे, और ये प्रोसेसिंग यूनिट जो होंगे वो एआई टूल बेस्ड होंगे। ठीक, वो प्रोसेसिंग यूनिट जो होंगे वो जीपीएस मेथड से कनेक्टेड होंगे। स्टोरेज जो होगा वो मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी होगा, जिसे कोल्ड स्टोरेज है, ताकि लंबे समय तक ये चीजें खराब ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा भाई, स्ट्रेंथनिंग द मार्केट लिंकेजेस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो क्या करना है, लिंकेजेस, पहले तो एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसके लिए क्या करना है भाई, मखाना बोर्ड क्या करेगा, इसका फोकसिंग ऑन ब्रांडिंग, जो ब्रांड पर फोकस करेगा कि किसी तरीके से इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि इसका ओवरऑल डिमांड जो है वर्ल्ड में जनरेट हो जाए। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, ब्रांडिंग, स्ट्रेंथनिंग द मार्केट लिंकेजेस। तो यहां पर स्ट्रेंथनिंग दी मार्केट लिंकेजेस, स्ट्रेंथन करना है मार्केट लिंकेजेस को, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, इन दोनों को करना है, ताकि एक ग्रिड सिस्टम बना दें, ताकि हम कोई भी फार्मर जो है वो मखाना का प्रोडक्शन करे तो उसको एक मार्केट मिले जहां पे वो उसे सेल कर पाए। और स्ट्रेंथनिंग द मार्केट लिंकेज में यहाँ पे ई नैम
जो ई मंडी का कॉन्सेप्ट है, ई मंडी, ई मंडी एक तरीके से फार्मर्स को डिजिटलाइज करना। नेक्स्ट क्या होगा, ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन और जीआई टैगिंग, ये भी करना है। ब्रांडिंग, 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 सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन एंड जीआई टैग्स। देखो ये सारे फायदे हैं, जब अगर मखाना बोर्ड बन जाएगा तो इसके ये सारे फायदे होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्या हो गया भाई, नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद क्या, फाइनेंशियल एंड पॉलिसी सपोर्ट फॉर फार्मर्स। तो हम लोग यहां पे एक नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड पॉलिसी सपोर्ट फॉर फार्मर्स। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे एंड पॉलिसी सपोर्ट भी करेंगे फार्मर्स को, ताकि फार्मर का जो इनकम है वो जनरेट हो पाए। अगर मान लो मैंने जैसे बताया कि ये जो रीजन है वो मिथिलांचल का रीजन है, तो मिथिलांचल के रीजन में फ्लड प्रोन एरिया है, ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारा डिस्टरबेंस होता रहता है। और यहाँ पर ह्यूमन मेड फ्लड भी, मतलब एंथ्रोपोजेनिक रीजन से भी फ्लड आते हैं। तो इसका मतलब है कि इस एरिया में अगर फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर को नहीं दिया जाएगा, पॉलिसी सपोर्ट फार्मर को नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मखाना के प्रोडक्शन पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या है, स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च पर भी मखाना बोर्ड जब आ जाएगा तो स्किल्ड हमारे पास लेबरर होंगे, स्किल्ड फार्मर होंगे। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च कि आखिर में ये जो मखाना है इसमें और क्या इनोवेशन कर सकते हैं, कैसे इसकी क्वालिटी को और बढ़ाया जा सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अभी इस तरह का कंक्लूजन, अब हमें यहाँ पर हम ये देख लिए कि कौन कौन से पार्ट हैं, तो यहाँ पर अब हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कंक्लूजन में क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हैं कि बिहार हैज नेचुरल एडवांटेज इन मखाना प्रोडक्शन बट स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी हैव केप्ट इन एक्सपोर्ट लो। The Makhana board can be the game changer in the production as well as the increasing the farmer income by the establishment of Makhana board। तो ये हो सकता है आपका एक appropriate और ideal type। as such तो क्या आंसर नहीं होता, हमेशा there is a scope of reform, there is a scope of betterment। तो आप इसको करते रहें, ये एक तरीके से हमने डिस्कस कर दिया आपको कि क्या क्या आपको सिंपली इसमें ऐड करना था। Okay, come with the another question. Look at the question. Bihar, despite its rich history and geographical significance, faces significant challenges in its transportation infrastructure. Analyze the historical factors that have contributed to underdevelopment of transportation in Bihar. Critically, examine the recent initiative undertaken by the स्टेट गवर्नमेंट टू इंप्रूव कनेक्टिविटी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार डिस्पाइट इट्स रिच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस फेसेस सिग्निफिकेंट challenges in its transportation infrastructure. Analyze the historical factor that have contributed to underdevelop of transportation in Bihar. Critically examine the recent initiative undertaken by the state government of improve the connectivity। देखो बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, 38 मार्क का क्वेश्चन है। तो बिफोर वी आर गोइंग टू start answer writing directly, firstly we are decoding the question। decode करना है, decoding is the step where you can break the question which can easily you can say that कि किस मैप में लिखना है, किस स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, क्या क्या इनपुट्स इस क्वेश्चन में इनकलकेट कर सकते हैं, ये सब बातें डिकोडिंग से आपको पता चल जाती हैं। तो आओ जरा देखें भाई, कह रहे हैं कि पहला है कि डिस्पाइट इट्स रिच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंसेस
faces the significant challenges in its transportation infrastructure. तो इसका मतलब है कि प्राइमरी कीवर्ड जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आकर के एंड कर रहा है. फिर क्या कह रहा है, टेल वर्ड है, तो टेल वर्ड एनालाइज करना है, और एक है क्रिटिकली एग्जामिन करना है. ये दूसरा टेल वर्ड है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है. द हिस्टोरिकल फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द अंडर डेवलप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिहार. आओ जरा देखें भाई, इस पर हमने एक बार पहले इंट्रोडक्शन लिख रखा है. तो देखो भाई, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो कह रहा है बिहार हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एज अ लैंड ऑफ एंशिएंट मगध, नालंदा एंड वैशाली. अंग प्रोविंस भी डाल सकते हो, देयर इज नो इश्यू. हैज फेस्ड परसिस्टेंट चैलेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पाइट इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन between north and eastern India. Bihar's road, rail and air connectivity remains underdeveloped. Several historical factors have contributed to this, but recent government initiative aim to transform the state transportation landscape. देखो, एक बैलेंस्ड इंट्रो दिया हमने बताया कि भाई जो बिहार है वो कैसे हिस्टोरिकली उसका इंपॉर्टेंस कैसे है. यहां पे यू कैन ऐड सिल्क रूट. You can also add the importance of Bihar's road and transportation and include Silk Route कि भाई ये एंशियंट सिल्क रूट भी यहीं से जाता था. ठीक, ये नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट के कॉरिडोर की तरह भी काम करता था. ठीक ना, इस तरह का भी आप कर सकते हो. अब कह रहे हैं कि नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हिस्टोरिकल फैक्टर्स बिहाइंड द बिहार ट्रांसपोर्टेशन अंडर डेवलप. तो पहले लिखा है कॉलोनियल नेग्लेक्ट और ब्रिटिश एरा पॉलिसीज. कॉलोनियल नेग्लेक्ट का मतलब क्या है कि भाई ब्रिटिशर्स के एरा में ये एरिया केवल एक कनेक्टिंग पाथ था. Whole Bihar is treated as a connecting path, and that's why the interior part or the remote part of Bihar cannot be developed, because in the colonial era the Britishers are only developing on those areas where the resources, some kind of resources, and where the market is. तो जहां पर भी मार्केट है और जहां पर रिसोर्स है वहीं पर डेवलपमेंट हो रहा था. तो होल बिहार में रिसोर्सेज ऐसे थे नहीं, तो इस वजह से जो नॉर्दर्न बिहार है, जो रिमोट बिहार है, जो जिसको आप बोलते हो रियल बिहार, वहां पर रोड रेल की कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज. जैसे मान लो चंपारण है, तो अब चंपारण में इंडिगो का कल्टीवेशन तो हुआ, पर उसकी वजह से कोई बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी में डेवलपमेंट नहीं हो पाया. ऐसे कलकत्ता से मुंबई जाने के लिए, कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए उस रेल पाथ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स पड़े उनका भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज बिहार इज ओनली लाइज इन द कनेक्टिंग पाथ इन द व्यू पॉइंट ऑफ ब्रिटिशर्स के व्यू पॉइंट में ऐसा ही था. ठीक, और दूसरा चीज क्या है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो देखो कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट होता है उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करता है, और ये वहीं पर होता है जहां पे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो. तो बिहार में लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, हैवी इंडस्ट्री थी नहीं. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज से उसको प्रमोट नहीं कर रहे थे, बिकॉज इन ब्रिटिश क्या हो चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था. इसी के साथ परमानेंट सेटलमेंट आ गया था, और परमानेंट सेटलमेंट आने की वजह से लैंडलॉर्ड जो थे वो इंसेंटिव लेते थे टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसका मतलब है कि भाई अब यहां पर कुछ ऐसा है भी नहीं जिसकी वजह से लोग जो हैं बड़े पैमाने पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं इन्वेस्ट करें रोड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे. नेक्स्ट क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस. पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्या हुआ कि जो ये पोर्ट एक्सेस था, कलकत्ता जो पोर्ट एक्सेस था वो हाथ से चला गया, और इंडिया
इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि बिहार जो है लगातार वहां पर एक पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमने देखा कि कोई बहुत हैवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ। यह इंडस्ट्री जहां जिस एरियाज में सेटल की गई उस एरिया में इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड लेबर तो बाहर से आए, अनस्किल्ड लेबर आए, पर उनके लिए कोई बहुत बेहतर सुविधा का डेवलपमेंट, बेहतर फैसिलिटी, बेटर फैसिलिटी नहीं हो पाई। अब उसके बाद क्या है, डिवीजन ऑफ बिहार। 2000 में डिवीजन ऑफ बिहार हो गया। हम जानते हैं कि झारखंड इससे अलग हो गया, और झारखंड अलग हुआ तो लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट द डिवीजन ऑफ बिहार, इट इज द डिवीजन ऑफ मिनरलाइजेशनल बेल्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड। तो जितना भी मिनरलाइजेशन था, जो मिनरल था, वो 96% के आसपास झारखंड में शिफ्ट हो गया। तो जो बचा खुचा इंडस्ट्री की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ था वो भी चला गया। नेक्स्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड पॉलिसी नेग्लेक्ट। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी 1970s to 2000, हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बिहार में रही, कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्टेबल नहीं रही, और करप्शन इन इट्स पीक, करप्शन भी अपने पीक पर रहा। तो इसकी वजह से भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाया। रोड, रेल और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो पाया। फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड जोग्राफिकल चैलेंजेस। तो पहली बात यह है कि जो नॉर्दर्न बिहार है वहां पर स्लोप ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, तो रिवर्स जो है जैसे कोसी है, बागमती है, गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, इन सब की वजह से जो रिवर है उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो फ्लड की वजह से, यहाँ पर आप अक्सर देखते हो कि बिहार में कि ब्रिज टूट के गिर गया, ठीक, पुल जो बनाया गया वो टूट के गिर गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट फ्लडिंग है और ज्योग्राफिकल चैलेंजेस यहाँ पे बहुत सारे हैं। और ये क्या आता है, आपको पता ही है कि जोन 4 में, ये अर्थक्वेक जोन 4 में आता है, जो कि एक सीवियर जोन है। तो ये भी रहा बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पीछे, अंडर डेवलपमेंट के पीछे कौन कौन से बैरियर से, इसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कह रहा है कि रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, रिसेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया है। मतलब गंगा एक्सप्रेसवे, बिहार एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन टू बूस्ट हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी के लिए बिहार एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतमाला प्रोजेक्ट है। भारतमाला प्रोजेक्ट में सेवरल जो नेशनल हाईवेज हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। और क्या है, रूरल रोड कनेक्टिविटी भी डेवलप की जा रही है इसी में। नेक्स्ट क्या है, ब्रिज एंड रिवर कनेक्टिविटी, ब्रिज एंड रिवर कनेक्टिविटी। तो बिहार में बहुत सारा ब्रिज एंड रिवर कनेक्टिविटी की जरूरत है, स्पेशली इन नॉर्थ बिहार। वाई, बिकॉज नॉर्थ बिहार में बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि जहां पर ब्रिज नहीं है, लोग नेचुरल बैम्बू का, केन का ब्रिज बना के एक दूसरे से जो है लिंक हो रहे हैं। इससे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हो रहा है, बल्कि इकोनॉमी में जितना कंट्रीब्यूशन लोकल पीपल्स का होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं बिहार के, द पीपल्स ऑफ बिहार, दे आर फेसिंग बैकवर्डनेस एंड whole state facing backwardness because of the geographical challenges in the north Bihar as well as in the south Bihar, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रेल नेटवर्क एक्सपेंशन। तो रेल नेटवर्क एक्सपेंशन भी हो रहा है। अब रिमोट एरियाज में, द एरियाज विच आर नॉट इन टच विद द मेन लैंड, द मेन स्ट्रीम, वहां पर भी जो रेल नेटवर्क है उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी बूस्ट किया है हमने देखा है कि पटना के बाद दरभंगा जो है गया है। इन सब एरियाज में एयर कनेक्टिविटी, जैसे दरभंगा में तो अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेट किया था दरभंगा एयरपोर्ट को। तो इस तरीके से मल्टी एयरपोर्ट्स बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद क्या है, मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स, मेट्रो सिटी बनाया जा रहा है। जैसे पटना को प्रपोज्ड मेट्रो सिटी है पर उसका काम अभी चल रहा है, तो ये भी कर रहे हैं हम लोग उसके बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि क्रिटिकल एनालाइज द फ्यूचर आउटलुक, क्रिटिकली एनालाइज करना। देखो मैंने कई सारे पार्ट्स में क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया है। स्ट्रेंथ ऑफ द रिसेंट इनिशिएटिव, पहला क्या है, इंप्रूव द नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे 31, नेशनल हाईवे 2, बेटर रूरल अर्बन इंटीग्रेशन वाया न्यू रोड एंड ब्रिजेस,
enhance the air travel facilities, improving tourism and business travel. ठीक, ये सब करना है. उसके साथ साथ हमें क्या करना है भाई, challenges that remain वैसे कौन से, जैसे flood damage continues to disrupt the road railways every year, delayed metro projects, जैसा कि बिहार में जो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट है वो अभी काफी डिलेड चल रहा है, स्लो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड यू कैन से ट्रैक मॉडर्नाइजेशन बहुत स्लो है, लैक ऑफ लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी नहीं है बिहार में अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, प्लस जो चैलेंज है वो एक है करप्शन. करप्शन जो है वो वैसा ही है, तो ये भी एक चैलेंज है. तो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आप इस क्वेश्चन में ये एक तरह का एक आइडियल आंसर तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कोई भी आंसर आइडियल नहीं होता, पर एक तरह का आइडियल आंसर है, एक तरह का आपको एक कुछ की पॉइंट्स बता रहा है इस आंसर में, आप देखें और फिर एनालाइज करें. वी आर फर्दर move to the another question. How does lithium play a crucial role in energy transition towards renewable energy? Discuss why is the discovery of lithium reserve in the Salal Hamna area of Jammu and Kashmir significant for India? देखो ये तो बड़ा लेटेस्ट सा क्वेश्चन है. कह रहा है कि how does lithium play a crucial role in energy transition towards renewable energy? तो क्या करना है, फर्स्टली फाइंड आउट द टेल वर्ड. ओके, फर्स्टली फाइंड आउट द टेल वर्ड ऑफ द क्वेश्चन. क्या करना है, पहले फाइंड आउट द टेल वर्ड ऑफ द क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन का टेल वर्ड देखना है. तो टेल वर्ड में क्या है, तो कह रहा है कि हाउ डज lithium play a crucial role in energy transition towards renewable energy. Discuss why is the discuss is the tail word. Discuss why is the discovery of lithium reserve in the Salal Hamna region of Jammu and Kashmir significant for the India. तो पहला tail word हो गया, and then find out the primary keyword. How does lithium play a crucial role in energy transition towards renewable energy? ये आपका primary keyword हो गया, primary keyword of the question. And the secondary is why is the discovery of lithium reserve in the Salal Hamna area of Jammu and Kashmir significant for India? This is your secondary keyword. तो पहले हमने क्या किया क्वेश्चन में, स्ट्रक्चरिंग की कि प्राइमरी कीवर्ड क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, टेल वर्ड क्या है, बिकॉज इट गिव अस द रोड मैप. क्या कर रहा है, रोड मैप दे रहा है, हाउ वी कैन अप्रोच एंड व्हाट टाइप ऑफ and what kind of approach we can take further to the solving the question or decoding the question. ठीक, तो कह रहा है कि how does lithium play a crucial role. तो पहले तो हमें ये बताना है कि lithium is a critical mineral ना, which atomic number is 3 and it is very crucial and playing the vital role. It is playing the vital role in the development, or it is playing the vital role in the एनर्जी ट्रांजिशन. तो यहां हमने लिखा है कि लिथियम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी ड्यू टू इट्स यूज इन लिथियम आयन बैटरीज which power electric vehicles, renewable energy storage system and consumer electronics. As the world moves away from the fossil fuel, lithium is essential for ensuring stable and efficient क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन. तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई लिथियम जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है. लिथियम क्या है, एक क्रिटिकल मिनरल है विच हैव द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एंड लिथियम हैव द पोटेंशियल टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्रोस्पेक्टिव में लिथियम. बट करेंटली इंडिया हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स. चैलेंज क्या है कि इंडिया के पास लिथियम डिपॉजिट्स कम है. ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया. अब कह रहा है कि सेकेंडरी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लिथियम इन द एनर्जी ट्रांजिशन. एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई एनर्जी, अभी हमारा एनर्जी डिपेंडेंसी किस पर है, बेसिकली वी आर डिपेंडिंग ऑन दी फॉसिल फ्यूल्स. हम किस पर डिपेंडेंट हैं, फॉसिल फ्यूल पर. ट्रांजिशन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं.
तो ट्रांजिशन के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि हाउ द लिथियम इज इंपॉर्टेंट एंड प्लेइंग द वाइटल रोल इन द एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन में लिथियम कैसे फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकता है। तो देखो इधर, लिथियम आयन बैटरीज आर द बैकबोन ऑफ रिन्यूएबल ट्रांजिशन। बैकबोन है, क्यों? क्योंकि लिथियम एनर्जी जो है सोलर एनर्जी में भी यूज होता है, लिथियम एनर्जी जो है विंड एनर्जी में भी यूज होता है बैटरी स्टोरेज में, लिथियम एनर्जी जो है टाइडल एनर्जी में भी यूज हो सकता है, लिथियम एनर्जी ग्रिड एनर्जी में भी यूज हो सकता है। तो इसके लिए रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो भी ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं उन सब में लिथियम बैटरीज लगेंगी। लिथियम बैटरीज जो है उनका स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है? ग्रिड एनर्जी एंड स्टोरेज एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन में भी इनका यूज है। ग्लोबल शिफ्ट टू द क्लीन एनर्जी, इसका मतलब है ये कि जो हमारा नेट कार्बन इमिशन, नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट है, नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट है 2070। अगर उसको अचीव करना है तो हमें ये लिथियम ही उस तरफ प्रोग्रेसिव वे में या पॉजिटिव प्रोग्रेस के वे में हमें पुश कर सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लिथियम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ द लिथियम रिजर्व इन द सलाल हेमना एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। द स्केल ऑफ द डिस्कवरी, जो डिस्कवरी हुआ है इससे क्या प्रॉफिट है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इंडिया इज बेसिकली इज द लार्जर इंपोर्टर ऑफ लिथियम बैटरीज। तो जैसे ये डिस्कवरी हुई तो हम क्या हो जाएंगे, हम एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, सेल्फ रेजिलिएंट हो सकते हैं और सेल्फ कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जो इंपोर्ट करने में खर्च हो रहा है, वो फॉरेन एक्सपोर्ट में बदल सकता है, हमारा फॉरेन रिजर्व बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट एंड वर्ल्ड्स लिथियम डोमिनेंसी इज डोमिनेटेड बाय चाइना। तो चाइना में जो ट्रेड डेफिसिट पॉलिसी है हमारी, उसको भी हम कहीं ना कहीं कंपनसेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डिपेंडेंट हैं, हमारा पूरा मार्केट जो है बैटरी, ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हमारे जो मेडिसिन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लिथियम का यूज होता है वो सब डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का मेन फैक्टर है लिथियम, वो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में कमी आएगी, इन सब चीजों में जो डिपेंडेंसी है हमारी अदर कंट्रीज पर वो कम होगी और हम एक सेल्फ रेजिलिएंट और सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ ऑटोमेटेड कंट्री बनेंगे, जो खुद का बनाएगा भी, जहां पर कंजम्पशन भी है, जहां पर मार्केट भी है। ठीक, तो कह रहा है नेक्स्ट क्या है अब इसके बाद कि चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। चैलेंजेस क्या क्या है? तो चैलेंजेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम इन जम्मू एंड कश्मीर। पहला तो यही है कि इससे बहुत सारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि लिथियम को निकालना इतना आसान नहीं है। इसके जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है, इट इज वेरी कॉस्टली एंड इसके लिए हमने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में भी हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए हमने किसी से, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से हम लोगों ने क्या किया है, एक तरीके से एक तरीका कह लीजिए कॉमन एग्रीमेंट किया है, जिस पर कि हम तीनों लोग टेक्नोलॉजी का शेयर करके लिथियम एक्सट्रैक्शन करेंगे। पर अभी देखो, लिथियम एक्सट्रैक्शन से पहला तो एनवायरमेंटल कंसर्न है। लिथियम माइनिंग जो है वाटर इंटेंसिव है, इसमें वाटर का बड़ा लॉस होता है, इसमें इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो सकता है, इससे लैंडस्लाइड हो सकता है, इससे बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन होगा। और बेसिकली जो लिथियम है ये जहां मिल रहा है वो बहुत सारा एक तरीके से आइसो स्टैटिक इम्बैलेंस वाला रीजन है, आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस वाला रीजन है। तो जहां पर जो जियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं है, यहां पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, सॉइल लिक्विफिकेशन हो सकता है और एक तरीके से एंथ्रोपोजेनिक लैंडस्लाइड्स भी आ सकते हैं। ठीक, तो ये है। दूसरा क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स। हम जानते हैं कि लिथियम मिला है और जम्मू एंड कश्मीर जो रीजन है वो सिक्योरिटी पर्पज से लेकर के वो हमेशा से एक कंसर्न का सब्जेक्ट है। वहां पे बहुत सारा हम देखते हैं कि
blasting activity from the नेबरिंग कंट्रीज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको इम्पैक्ट करते हैं। माइनिंग फिजिबिलिटी जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि पहली चीज क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम एट द कमर्शियल स्केल रिक्वायर्स एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। पहले तो एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट इज इनवाइटिंग प्राइवेट एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन लिथियम माइनिंग। हम प्राइवेट प्लेयर्स को लिथियम माइनिंग में बुला रहे हैं और उनसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। लिथियम रिफाइनिंग एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर बीइंग सेट अप अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हम क्या कर रहे हैं कि जो लिथियम बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे करके उस स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो पार्टनरिंग विद द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना फॉर लिथियम प्रोसेसिंग एक्सपर्टीज। हम, चूंकि आप जानते हो कि अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, ABC जो है ये लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना जो है लिथियम प्रोडक्ट्स और प्रोसेसिंग को डोमिनेट करते हैं। तो चाइना तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से हमने एक कॉमन एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई हमें आप लिथियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, इन्वायरमेंटल हजार्ड ना हो और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। वाई? बिकॉज लिथियम प्लेइंग द वाइटल रोल टू अचीविंग द इंडियाज टारगेट 2030 ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी 500 giga energy produced from the renewable energy. It is the only way which lithium potential provide the only way to achieve the aim of 500 giga by the 2030. तो इस तरह का कुछ कंक्लूजन लिख करके आपको इस क्वेश्चन को देखना है। एंड वी आर मूविंग proceeding further. Look at the question. Examine the spatial distribution of soil types of Bihar, focusing on precision agriculture. Analyze the potential of Bihar's soil to contribute an evergreen agricultural revolution in India. Analyze the challenges and propose policy recommendation for Bihar to maximize agricultural productivity while ensuring the sustainable soil management. Look at the question. Question itself have so many questions. Question के अंदर बहुत सारे questions छुपे हुए हैं, हाइड है। तो फर्स्ट स्टेप टू व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच? फर्स्टली डिकोड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को डिकोड कर लेना है। डिकोडिंग द क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिकोड? भाई स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को ही ब्रेक कर लेते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें लाइट थ्रो करना है। कह रहा है एग्जामिन। तो फर्स्टली वी फाइंड आउट टेल वर्ड कि हाउ मेनी टेल वर्ड्स आर इन द क्वेश्चन, कितने टेल वर्ड्स हैं क्वेश्चन में। तो पहला है एग्जामिन। एग्जामिन करना है द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल टाइप्स ऑफ बिहार, मतलब प्राइमरी की वर्ड जो है उसमें बताना है कि बिहार में कितने टाइप के सॉइल्स हैं। फिर क्या कहना है, फोकसिंग ऑन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। लेट मी टेल यू लेटर व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। Analyze the potential. Again there is a keyword, tail word is analyze. So second tail word, analyze the potential of Bihar soil to contribute to an evergreen agricultural revolution in India. Again analyze. There is a third tail word, the challenges and proposed policy recommendation for Bihar to maximize the agricultural productivity while ensuring the sustainable soil management. तो देखो 3 टेल वर्ड्स हैं, मतलब 3 टेल वर्ड्स हैं। इसके साथ साथ इसमें विद इन सो मेनी क्वेश्चंस हैं, विद इन द क्वेश्चन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो कह रहा है कि एग्जामिन करना है स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल टाइप्स। इसका क्या आंसर होना चाहिए, एक मॉडल आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो कहोगे कि बिहार इज एन एग्रीगेरियन Bihar is an agrarian state where more than 75% of the population depends on agriculture. The state's fertile soil, primarily nourished by Ganga, Koshi, Gandak, Bagmati, you can add so many rivers, plays a crucial role in India's food security. With the rise of precision agriculture,
Bihar's diverse soil types can be leveraged for enhanced productivity, sustainable farming, and an evergreen agricultural revolution. However, several challenges, including soil degradation, overuse of fertilizers, and climate change, must be addressed to maximize the soil potential. तो देखो एक तरीके से एक बैलेंस इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे पहले पार्ट में क्वेश्चन के कह रहा है कि हाउ मेनी सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल टाइप्स ऑफ बिहार. तो मेजरली बिहार हैव 4 टाइप ऑफ सॉइल्स. अगर बिहार का अगर आप यहाँ पे मैप ऐड कर देंगे तो एग्जामिनर को मजा आ जाएगा. तो एक आप मैप भी यहाँ पे बिहार का ऐड कर सकते हैं जल्दी से. बिहार के मैप को बनाने के दौरान आपको बहुत ज्यादा चीजें तो ध्यान में नहीं रखनी है, पर यह है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि होलिस्टिकली बिहार का मैप कैसा बन सकता है. तो देखो ये बिहार का मैप है, इसमें 4 टाइप ऑफ मेजरली बिहार में सॉइल है. जैसे इधर अभी हम सब बताएंगे 1 2 3 और ये एक 4 टाइप का सॉइल है बिहार में. अभी देखते हैं कौन कौन सा सॉइल है. ठीक, तो जरा आओ भाई जरा देखें. तो कह रहा है नॉर्थ बिहार प्लेन्स हैव एलुवियल सॉइल. उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, जैसे मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण है. कुछ पार्ट कैरेक्टर क्या है सॉइल का, एलुवियल सॉइल है. एलुवियल सॉइल का मतलब होता है द सॉइल विच इज ड्रिफ्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर्स. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई फर्टाइल गैंगेटिक एलुवियल सॉइल है, रिच इन पोटास एंड लाइम बट डेफिशिएंट इन फास्फोरस, सुटेबल फॉर राइस, मेज, व्हीट एंड जूट एज वेल. अब ये हो गया नॉर्थ बिहार का. तो इधर के डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया ये सॉइल, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाएगा भाई आपके इस सब डिस्ट्रिक्ट में एलुवियल सॉइल हो गया. ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैप में दिखाते जाना है. साउथ बिहार प्लेन्स, डिस्ट्रिक्ट पटना, गया, नालंदा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैवियर क्लेज एंड सिल डिपॉजिट्स, मिड मॉडरेटली फर्टाइल विथ लो ऑर्गेनिक कंटेंट, सुटेबल फॉर व्हीट, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स. उसे भी आप मैप में दिखा सकते हो. Foothills of Himalayas like Tarai soils have more nitrogen या nitrogen compounds. District Kishanganj, West Champaran rich in organic matter due to the forest vegetation. High moisture retention capacity, ideal for tea, jute and horticulture crops. ठीक, यहीं पे पीसी कल्चर भी हो सकता है. Vulnerable for flooding and erosion. तो vulnerable है flooding and इरोजन के लिए. अब 4th है सदर्न हिल्स. आपको पता है कि धारवाड़ियन क्वार्टजाइट रॉक्स जो हैं, क्वार्टनरी धारवाड़ियन और कोडप्पन रॉक्स साउदर्न हिल्स में मिलती हैं. तो रेड सॉइल है. डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, कैमूर. लो फर्टिलिटी, रिच इन आयरन, एल्यूमिनियम, रिक्वायर्ड सॉइल अमेंडमेंट्स, लाइम, ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर एग्रीकल्चर, सुटेबल फॉर पल्सेज, ऑयल सीड्स. तो ये है. अब इसी को मैप में आपको दिखा देना है. ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रीसीजन एग्रीकल्चर. व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रीसीजन एग्रीकल्चर, क्या मतलब होता है प्रीसीजन का. तो प्रीसीजन एग्रीकल्चर इट मीन्स द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच यूज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक द यूज ऑफ जीपीएस, like the use of AI, like the use of modernized and modern tools, which says that कि भाई किस जगह पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड है, किस एरिया में, इन विच प्लेस कितना क्वांटिटी में मैन्योर की जरूरत है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, नीड्स है, या किस एरिया में कितना केमिकल फर्टिलाइजर का क्वांटिटी होना चाहिए. ये सब प्रिसीजन एग्रीकल्चर का पार्ट है. ठीक, मतलब टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर. अब उसी में क्या कह रहा है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड बिहार सॉइल पोटेंशियल फॉर एन evergreen revolution. What is the means of evergreen revolution? The revolution which take place not only on the basis of using so many fertilizers and chemical fertilizers, and you can say that pesticide and herbicides. It is not that type of
green revolution. It is a evergreen revolution which is based on sustainable revolution, which is based on sustainable and resilient agriculture. Precision agriculture is a game changer for Bihar. Why? Because precision agriculture is a technological driven agricultural system which use AI, which use GPS system, which use remote sensing. तो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करता है. हाउ बिहार सॉइल कैन सपोर्ट एन एवरग्रीन रेवोल्यूशन. बिहार का सॉइल जो है एवरग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे सपोर्ट करता है. तो जब आप देखोगे कि अनलाइक ग्रीन रेवोल्यूशन which focused on high yield crops with excessive chemical fertilizers, जैसे अभी हमने बताया था. पर एवरग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है भाई? एवरग्रीन रेवोल्यूशन emphasizing on sustainable farming. एवरग्रीन रेवोल्यूशन किसको फोकस करता है? सस्टेनेबल फार्मिंग को फोकस करता है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को फोकस करता है. उसके साथ साथ वो जो है आपका सस्टेनेबल इरिगेशन के सिस्टम को फोकस करता है. तो अब इसमें क्या करना है कि ये जो बिहार का मैप है उसको बिहार के मैप के साथ हमें ऐड कर लेना है और उसमें इसी बात पर फोकस करना है. नेक्स्ट क्या है? चैलेंजेस इन बिहार सॉइल मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर. व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस इन बिहार एग्रीकल्चर. तो पहला क्या है? सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोजन. Soil degradation, it doesn't means only soil erosion. Soil degradation have so many types. During the offline classes we can discuss in detail, but it is an answer writing program, so we cannot go in and deep dive into the concept. Soil degradation and erosion. Soil degradation कैसे होता है भाई? बहुत ज्यादा irrigation भी कर दो, अगर रिवर की वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी ज्यादा है तो भी वो जो है सबसे जो थिनर लेयर और द टॉप मोस्ट लेयर है उसे इरोड कर देता है. तो सॉइल इरोजन है. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लडिंग इन नॉर्थ बिहार इज अ बिग इशू. फिर क्या कहना? ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड डिक्लाइन द सॉइल हेल्थ. ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है, इसीलिए हमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जरूरत है, इसीलिए हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर थिंकिंग दैट कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो जो है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर करना पड़ेगा, डाई यूरिया यूज करना पड़ेगा, विदाउट नोइंग दैट कि व्हाट इज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ pesticides in the soil health. So overuse of chemical fertilizers and declining the soil health, it will present the tendency and it will, you can say that, reveal the character of the farmers कि farmer के पास education कितना इस विषय में कम है. Next क्या है? Climate change impact on the soil productivity. Yes, climate change is a big issue and we all are facing climate change. तो climate change से soil productivity पे इम्पैक्ट होता है. जैसा मान लो अगर बहुत ज्यादा समर होने लगेगा तो सॉइल का जो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो तो एडवर्स इम्पैक्ट होगा और जो मॉइस्चर रिटेन क्या होगा वो भी इवोपरेट होने लगेगा. लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन. यस, बिल्कुल हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल मेथड से ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं. लैकिंग इन द टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन है. फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग एंड पुअर इरिगेशन. फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, बहुत छोटे छोटे लैंड का साइज है जिसकी वजह से हम कोई मेजर स्टेप नहीं ले पाते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के मास लेवल पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. इसीलिए हमने देखा था कि एक फार्म बिल गवर्नमेंट लेकर के आई थी, तो इसके सजेस्टिव मेजर में आप दे सकते हो कि एक तरह का कुछ महालवाड़ी सिस्टम टाइप का होना चाहिए. ठीक, तो कह रहा है ये हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट एस्पेक्ट्स है इसमें पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर द सस्टेनेबल सॉइल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. तो पहले क्या करना है? सॉइल हेल्थ कार्ड एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनानी है. सॉइल हेल्थ के लिए एक तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी है कि सॉइल हेल्थ कार्ड को एक्सपेंड करना है, विथ एआई बेस्ड करना है इसको. नेक्स्ट क्या है? स्मार्ट इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट. स्मार्ट इरिगेशन का मतलब क्या होता है? स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, जो वाटर मैनेजमेंट को भी दिखाता है. और फिर क्या है? प्रमोशन ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप. एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है द प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर के साथ ही फॉरेस्ट को भी आप उसके कॉर्नर पे या जो स्पेस है जो विद इन द टू क्रॉप्स, उस स्पेस को आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो. क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को लाना है जो रेजिलिएंट हो,
क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, मतलब क्लाइमेट चेंज भी हो तो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें हो। इन्वेस्टमेंट इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड डिजिटल फार्मिंग, इन्वेस्टमेंट करना है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। जो प्रोग्राम है ना ड्रोन दीदी प्रोग्राम, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक। एग्रीकल्चर एंड डिजिटल फार्मिंग का मतलब है कि आपको मैसेजिंग जाए, आप पर लगातार एसएमएस के थ्रू ये पता चले कि कौन सा कितना टेम्परेचर है, कितना फर्टिलाइजर यूज होना चाहिए। लोकल मास लेवल पर कैंप लगने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन, फार्मर एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, ठीक। और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द मार्केट लिंकेजेस एंड फार्मर ट्रेनिंग्स, यहाँ फार्मर ट्रेन भी करना है। स्ट्रेंथनिंग द मार्केट लिंकेजेस मतलब ई मंडी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और जो फार्मर हैं वो भी डिजिटली इससे कनेक्टेड होने चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप इट विल गिव यू द holistic way how to approach the question and what is the way forward. Thank you so much.